Okay, so yesterday we have just started the introduction part only. So we have just discussed about some history of AutoCAD and we have started the introduction to the graphical user interface. So आज मैं पहले से आकाश एंड सक्षम ज्यादा कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, सिर्फ मैं क्विकली यस बोल सर। देता हूँ। हिस्ट्री पार्ट में बाद में एक बार बता देंगे फिर से। ओके 1982 में ये मतलब इन्वेंट हुआ था ऑटोकैड and its the headquarter is USA and it's developed and marketed by Autodesk.inc Incorporation. INC stands for Incorporation, Autodesk Incorporation जो यूएसए के कंपनी एक है यूनाइटेड स्टेट का। एंड द पर्सन जो मतलब डेवलप किए थे उनका नाम था जॉन वॉकर। ओके, ये थोड़ा सा हिस्ट्री है और ओके बाकी सर। मैंने क्या किया था, थोड़ा सा जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, जैसे कि ऑटोकैड आप अगर आप ओपन करोगे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन है हमारे पास, ओपन फाइल का ऑप्शन है, स्टार्ट ड्राइंग का ऑप्शन है, कुछ रिसेंट डॉक्यूमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। सो जब भी आप स्टार्ट ड्राइंग के ऑप्शन में जाओगे इट विल लैंड यू टू द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस फॉर ऑटोकैड। सो ये जो स्क्रीन दिख रहा है दिस इज द GUI ऑफ ऑटोकैड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। सो कल हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा बहुत खत्म किया था। सो इंट्रोडक्शन इन द सेंस जो पार्ट है, कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं हम। If you will see here in the left top corner, you can see a symbol. Can you see this? This is called your application menu. If you will open this application menu, you will get some options. Okay. Next to the application menu, these are some quick menus are given or tools are given for quick access. These are called the quick access toolbar. This total toolbar is called quick access toolbar. Next to that, we are having title bar. Then this file, edit, view, insert, format, these are called the menu bars. Again, these are called pull down menus. If you will click on any option tab, you will get some tools or more options are there. This is why it is called pull down menu, or normally this is called menu bar. So in some cases, menu bars are in hidden condition. For that, what you have to do at the end of the quick access toolbar, you can see a down arrow mark. If you will click on that, you will have option to hide menu bar. If the menu bar is visible, then you can go for the hide menu bar option, or your menu bar is hidden, then you can go for the show menu bar option. At the same location, you will get the alternative options. Next to that, this home, insert, annotate, this complete arrangement is called ribbon, RIBBON. So ribbon consists of some tabs, like home tab is there, insert tab is there, annotate tab is there, parametric tab is there, and each tab consists of some panels, like draw panel is there, modify panel is there, annotation panel is there. So this ribbon consists of tabs. Tabs consists of some panels and each panel consists of their respective tools. जो पैनल में जो काम, जैसे कि मॉडिफाई पैनल में अगर जाओगे, मॉडिफाई रिलेटेड, मॉडिफिकेशन रिलेटेड जो भी टूल्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे वहां पे। नेक्स्ट टू दैट, यहाँ पे जो ब्लैक कलर एरिया जो दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड आवर ड्राइंग एरिया और वर्क एरिया, जहाँ पे हम लोग काम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप यहाँ पे एक XY कोऑर्डिनेट सिस्टम दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड द UCS, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। UCS, ये यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। नेक्स्ट टू दैट, आप यहाँ पे देखोगे अगर व्हाइट कलर का एक बार है जहाँ पे लिखा है टाइप ए कमांड, दिस इज कॉल्ड ए कमांड बार और प्रॉम्प्ट एरिया। Because AutoCAD is a command based software, that's why we need to give command for each and every tools. We are having command also, or you can directly go through menu bar also, or you can go for the icon also. From ribbon also you can choose that one. We will see it later. So this bar is called your command bar or prompt area, or prompt bar, command bar, whatever you can just tell. And this line is called your status bar. Few icons are in blue color and few icons are in white color. This is called your status bar. And this one is your view cube. You can see here east, west, south, north views are there. Even we are having 6 orthographic views and 4 isometric views in AutoCAD. So ये introduction part yesterday हमने खत्म किया था, right? Akash and Saksham,
Yes, sir. For you Yes, people sir. only, Yes, just sir. I just repeated all these things. इतना ही किए थे हम लोग और ज्यादा नहीं किए Yes, थे sir. कुछ भी. Okay. तो नेक्स्ट आगे चलते हैं हम आज के सेशन का. Okay. ओके, नाउ यू कैन सी in our work area or drawing area we are having some horizontal and vertical grid lines, isn't it? Can you see these grid lines? Yes, sir. These are called the grids. Yes, sir. These are called grids. If you have worked on graphs like that only, it is there. You can see after every small boxes, 5 small boxes, 1 2 3 4 5, you will have a bigger boxes or major box is there. There are 5 minor boxes are there, and after every 5 minor boxes, one major boxes will be there. These are called the grid lines. Okay, these are called the grid lines. You can work on grids. Other than that also, you can remove the grid also. So F7, if you will see your keyboard, F1, F2, F3, F4, F5, like that, F12 till F12 keys are there, isn't it? So F7 is the shortcut key just to switch on and off your grid mode. If you will press F7, your grid mode will be off. Again, you should press F7, your grid mode will be on. Let's see. F7, I have pressed F7. Now grid mode is off. अभी देखो grid mode off हो गया. Again, I am pressing F7. Now grid mode is on. Got it? Yes, sir. Now, whenever I am just switching off the grid mode by pressing F7, you can see from the status bar, this icon is getting changed. Now it is in white color, while I am switching on the grid mode, now it is in blue color. Can you see this? This is grid mode. Apart from pressing F7, if you will click on this icon also, you will able to toggle between grid mode on and grid mode off. Is it clear to you what is grid mode and how we can Yes, activate sir. and on it and make it off? So this is grid mode. Sir, Yes. sir, can you once again repeat about what are grid? See, grid modes is nothing but if you have seen the graph paper, you have seen. आपको graph paper पता है? Yes, sir. So likewise, arrangement is also there here. आपको कुछ vertical lines है, कुछ horizontal lines हैं. वहां पे देखना है जो बड़े-बड़े boxes हैं, उनके अंदर छोटा-छोटा boxes भी हैं. Yes, हर sir. 5 boxes के बाद एक बड़ा box है. Clear है? हाँ जी सर. So this is called grids. ये grids को हम ऑफ भी कर सकते हैं, ऑन करके भी काम कर सकते हैं. मैं बताऊंगा आगे जाके, मैं बताऊंगा कैसे काम करना है, क्या करना है. ठीक है? Okay, sir. So just ये grid mode on off and the shortcut key is F7. इतना समझ में आया? Yes, sir. Okay. Next, मैं एक लाइन क्रिएट करता हूं. I want to create a line of 10 unit. I want to create a line of 10 unit. In AutoCAD, there are 3 different ways are there to activate or to call a tool. और कोई भी टूल में काम करने के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड्स हैं. अब तीनों तो सीखो, बट किसी एक को प्रैक्टिस करो कि हाँ इसमें काम करना है हमको. ओके, द फर्स्ट मेथड इज बाय कमांड लाइंस. पहला जो लाइन का, अगर मैं कोई भी टूल्स का लेता हूं, पहले कमांड लाइन से हम काम कर सकते हैं उसके ऊपर. जैसे कि मुझे एक लाइन क्रिएट करना है, I can just go to the command bar and I will simply type L and I will press enter from my keyboard. Then that command will work. For line, the command is L enter. Got it? Or as I told you, there are 3 ways are there. Second part, line is a draw command. I want to draw something, na? So line is a draw command. So if you'll go to the draw menu bar, you will get the line command. Either you can go through the command line or you can go through the menu bar also, or else simply you can go to the ribbon in home tab, draw panel, you will get line. Got it?
क्लियर है? Yes. So if I'm going to line command, the command line is L, and you can just press the enter key from your keyboard. Okay. Or you can go to the draw menu, you will get line. Or if you'll go to ribbon, then in home tab, draw panel, you will get line. See, these are the three different methods are there. कोई भी एक choose कर सकते हो. It's very easy. So now, if I'm going through the command line, क्योंकि मुझे अभी नया में अभी मतलब start किया है AutoCAD, so I want to remember all the commands. That's why it's very simple to take from draw and this from ribbon. So now, आप क्योंकि नए हो, so go through the command only. So I am pressing L and I am typing L and pressing the enter key. Now see, as I told you, this is also a prompt bar. This is also called prompt bar. When I am pressing, just typed L and press the enter button, it is asking specify the first point. What it is asking? Specify the first point. To create a line, we need at least 2 points. You know that, isn't it? Yes. Now, Yes, sir. I don't have any defined point. I don't have any defined point. So मेरे पास अगर coordinates होता point का या फिर कोई defined point होता, it's okay. So don't worry about that. आप कहीं पे भी एक click कर लो, कहीं पे भी आप लेफ्ट क्लिक कर लो. माउस में आपके पास 3 बटन हैं, लेफ्ट, राइट और मिडिल वाला एक स्क्रॉल का बटन है जो व्हील है ना. सो व्हेनेवर इट इज आस्किंग दैट स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, मैं रैंडमली कहीं पे एक लेफ्ट क्लिक कर लेता हूं क्योंकि मेरे पास तो कोई स्पेसिफाई पॉइंट है नहीं. सो मुझे कहीं पे भी एक पॉइंट डिफाइन करना है क्योंकि मुझे एक 10 यूनिट का लाइन क्रिएट करना है. सो लेट क्लिक हियर. जब पहले ऑटोकैड में काम करते हो, यू शुड हैव कंट्रोल ऑन योर क्लिक्स. इधर उधर का क्लिक मत करना, गलत हो सकता है ड्राइंग. अभी जैसे कि इट इज आस्किंग स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट, मैंने एक ही क्लिक किया, लेफ्ट क्लिक, दैट्स इट. नाउ if I will move my mouse, it is asking specify the next point. Even whatever it is written in the prompt area, the same thing it is showing with the cursor also. जो माउस पॉइंटर के साथ एक प्लस मार्क जो मूव कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कर्सर. कर्सर के साथ भी आ रहा है ना स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट. Yes, sir. Yes, sir. Even whenever I am moving my mouse, it is showing me the length also. The value is showing here 15.6292, like that only it is getting changed when I am moving my mouse. Now you can see, now this line I am just not able to construct in horizontal or vertical way. ये इधर उधर भाग रहा है and I want to restrict it. मुझे अब जैसे कि horizontal line ही create करना है, it will be quite difficult. मैं अगर यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे दिख रहा है specify first point के जगह पे साइड में 0 डिग्री लिखा हुआ है. जो कर्सर के नीचे स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट लिखा है और उसके साइड में 1 डिग्री 0 डिग्री ऐसे चेंज हो रहा है, दिख रहा है आपको? हाँ Yes, sir. डिग्री इज Yes, sir, गेटिंग yes, sir. चेंज. सो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि आपको 0 डिग्री में आके काम करने के लिए. दैट्स व्हाई आई एम हैविंग ए ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो मोड. इफ यू विल क्लिक ऑन इट और द शॉर्टकट की इज F8. नाउ इट विल रेस्ट्रिक्ट योर लाइन टू मूव आइदर इन horizontal or in vertical directions. Ortho mode, the shortcut key is F8. Even the symbol itself indicates that it's a 90-degree symbol or perpendicular symbol. So either you can go horizontal direction or you can go vertical directions. Got it? What is ortho? Yes, sir. If you will switch off it, again your line will fluctuate.
just make it on ortho on. Now as it is asking, specify the next point. Already I have defined my first point. Now it is asking the next point, and I want to create a line of 10 unit. I need to enter 10 from my keyboard. Keyboard से 10 मैंने ये किया, उसको टाइप किया, and just press the enter key. Just press the enter key. Now again continuously it is asking specify the next point. और एक लाइन क्रिएट करना है क्या? बट मुझे तो एक 10 ही यूनिट का लाइन क्रिएट करना था ना. तो यहाँ पे मैं एक भी ट्रिक बता देता हूं. आप देखो यहाँ पे जब 10 यूनिट का लाइन बन गया तो वही पॉइंट से वो फिर से स्नैप कर रहा है. 6.1844 दिख रहा है. मतलब जो स्टार्ट पॉइंट से यहाँ तक वो ये यहाँ तक 10 यूनिट है. आगे ये जितना बढ़ोगे उतना वो दिखाई देगा. सो लेट, मुझे तो एक लाइन ही चाहिए था. आई विल जस्ट प्रेस द एस्केप की फ्रॉम माई कीबोर्ड. आई विल जस्ट प्रेस द एस्केप की टू कम आउट फ्रॉम द कमांड. क्योंकि मुझे 10 यूनिट का ही लाइन बनाना था, तो ये बन गया मेरा 10 यूनिट का लाइन. अब मेजर कैसे करना है यहाँ से आप अभी तो थोड़ा सा शॉर्टकट सीख लो, मैं बाद में उसको डिटेल में बताऊंगा फिर से. यहाँ पे एक लीनियर का है डायमेंशंस, यहाँ पे दिख रहा है जो यहाँ पे, ये फर्स्ट पॉइंट को और सेकेंड पॉइंट को आप सिलेक्ट करके ये कर लो, दिखेगा आपको 10.000 दिख रहा है. यस सर. आपके माउस का जो बीच वाला जो व्हील है ना, उसको अगर स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप करोगे, इट विल अलाउ यू टू जूम इन एंड जूम आउट. मैं बताऊंगा, जूम कमांड भी बताऊंगा, बट अभी आपको जैसे कि तकलीफ ना हो, इजी एक्सेस करने के लिए आपको कहीं पे मेजर करना है. ज्यादा मत मतलब ये करो, वैल्यू दोगे तो डेफिनेटली उतना ही आएगा. सो डोंट वरी अबाउट द डायमेंशनिंग. ये सिर्फ मैंने चेक करने के लिए आपको बता दिया. पूरा डायमेंशनिंग का एक क्लास रहेगा जिसमें मैं पूरा डायमेंशनिंग बताऊंगा. सो अभी तो डायमेंशनिंग करने के लिए फोकस मत करना, सिर्फ वैल्यू करेक्टली एंटर करना जब भी आप काम कर रहे हो. डन. सो ये 10 यूनिट का मैंने लाइन क्रिएट कर लिया. इवन जैसे कि मैंने बोला, अगर माउस को आप स्क्रॉल इन एंड स्क्रॉल अप करोगे देन आपको जूम इन एंड जूम आउट वो अलाउ करेगा. सिमिलरली वही सेम जो व्हील को, मिडिल बटन को आप प्रेस करके अगर रखोगे देन इट विल शो यू अ हैंड सिंबल. क्या दिखा रहा है? एक हाथ का सिंबल दिखा रहा है ना. और प्रेसिंग करते हुए अगर माउस को अगर आप मूव करोगे तो आप कहीं पे भी रख सकते हो उसको. अगर यहाँ पे रखना है चलो ठीक है, अगर ऊपर बन गया है नीचे लाना है थोड़ा ला सकते हो एडजस्ट करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए. सो जूम इन एंड जूम आउट आप उसको व्हील को स्क्रॉल करने से हो सकता है. अगर मिडिल बटन को आप प्रेस करके रखोगे यू कैन पैन इट, PAN. ये जो है हैंड सिंबल आ रहा है और हम मूव कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड पैनिंग. दैट मीन्स हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं. एज आई टोल्ड यू, दिस XY मीटिंग पॉइंट इज द ओरिजिन फॉर दिस DWG फाइल. ये जो फाइल का ओरिजिन पॉइंट यहीं पे है. तो मैं जैसे कि पैन कर रहा हूं, मैं ओरिजिन को ही शिफ्ट कर रहा हूं, ना कि ड्राइंग को शिफ्ट कर रहा हूं. ड्राइंग को मैं शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, पूरा टोटल ओरिजिन को शिफ्ट कर रहा हूं. कैन यू सी दिस? Yes. सो अभी देखो Sir, मैंने, may you show this in grid lines? अब ग्रिड लाइंस पे मत रुको, मैं जो जो बोलता जा रहा हूँ ना वो ये करो. मैं ग्रिड लाइंस से वापस आऊंगा फिर से. Okay, sir. ग्रिड लाइंस मैंने सिर्फ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस बताया है. 5 छोटे छोटे बॉक्सेस के बाद बड़ा बॉक्स है, उतना ही बताया है. ठीक है. सी, जब मैं कुछ लेके जा रहा हूं ना कहीं से, मैं आपको इजी एक्सेस मतलब समझ में आएगा, इसलिए वो उस वहां से लेके जा रहा हूं. सो डोंट स्ट्रक, कहीं पे रुक मत जाना कि वो क्या हुआ वहां पे, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम. आई विल कम बैक टू ग्रिड लाइंस, डोंट वरी. अब जैसे कि मैंने लाइन कमांड बताया तब जाके आपको पता चले ना वैल्यू जा रहा है. जैसे कि ब्लू कलर में दिख रहा था, वो वैल्यू दिखा रहा था. मैंने अभी 10 एंटर किया तो 10 यूनिट का लाइन बनाया हमने. तो यहाँ पे देखो कितना सारा कमांड, मतलब बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया आपको. ग्रिड के बारे में बताया, ऑर्थो के बारे में बताया, लाइन कमांड के बारे में बताया, जूम इन जूम आउट कैसे करेंगे उसका बताया, पैन कैसे करेंगे वो बताया. अब देखो इतना सारा बात बता गया मैंने, उसके ऊपर फोकस करो. नाउ इज इट क्लियर अभी तक जितना भी बताया मैंने, या किसी को डाउट से? मैंने क्या किया, सिंपली एक लाइन क्रिएट करने के लिए ट्राई किया. आइदर आप लाइन कमांड से भी जा सकते हो और लाइन से भी जा सकते हो.
तो मेरे पास जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, आई डोंट हैव एनी स्पेसिफाइड पॉइंट, मेरे पास कोई स्पेसिफिक पॉइंट है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कहीं पे भी एक लेफ्ट क्लिक करके पॉइंट को डिफाइन कर रहा हूं, और जैसे ही मुझे मतलब माउस को मूव कर रहा हूं, इट इज शोइंग मी द वैल्यूज। सो मुझे अगर 10 यूनिट का चाहिए, तो मैं यहाँ पे मेरे कीबोर्ड से 10 यूनिट मैंने टाइप किया, एंटर किया एंड एस्केप किया, आई जस्ट प्रेस द एस्केप की। सो मेरा 10 यूनिट का लाइन बन गया। जूम इन जूम आउट करने के लिए मिडिल बटन है ही, पैन करने के लिए मैं मिडिल बटन को प्रेस करके पैन कर सकता हूं। दैट्स इट, इतना ही बताया मैंने अभी तक। डन। ओके, नेक्स्ट, सपोज मेरे पास 10 यूनिट का तो लाइन है ही, but I want to create a rectangle with 10 length and 7.5 height. Just remember, 10 is the length and 7.5 is the height of rectangle. Then what I should do, I want to continue with this line only. मुझे एक rectangle shape बनाना है यही line को continue के साथ। Done? Now again I should go to the line command. Again I should go to the line command. Let I can go to the draw or I can go to the line command. Now it is asking specify the first point. क्या बोल रहा है वो? Specify the first point. तो अभी मेरे पास specified point है, क्योंकि मुझे यही जो लाइन है दोनों एंड पॉइंट से कोई भी एक एंड पॉइंट को पकड़ के स्टार्ट करना है। आर यू गेटिंग मी? हेलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now, if you will move your cursor to any of your endpoints, it will snap you. This is endpoint. If you will come to this side, this is endpoint. If you will come to the middle, this is midpoint. Can you see this? Midpoint एक triangular shape में दिखाएगा, endpoint sir. से भी box shape में दिखा रहा है। Whenever you will snap with this point, जैसे कि आपको end point से start करना है, end point जब भी snap करे, then you should have your first click. First point को define करने के लिए you just click it and move down. मुझे क्योंकि rectangular shape करना है, move down, मेरा ortho on है, so let I will give a new value that is 7.5. As I told you, length is 10, height is 7.5. Got it? So now I am just given a new value 7.5 and press enter key from my keyboard. Now मुझे पता है मुझे rectangle complete करना है, no need to press the escape key. आप directly left direction में जा सकते हो। See, आप अगर बहुत आगे चले आए हो, यहाँ से लेफ्ट में राइट में जाने के लिए तकलीफ होगा आपको। देखो मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि लाइन तो यहाँ से ब्रेक हो गया था, आपने बहुत आगे चले आए हो, तो आप नीचे जाके थोड़ा सा इधर लेफ्ट में जाना, ये ट्रिक है। बहुत जन क्या करते हैं ना, वैल्यू तो दे देते हैं, फिर इधर जाने के टाइम में नहीं जाता है। सो व्हाट यू शुड डू, यू गो बैक टू दैट पॉइंट एंड कम टू द लेफ्ट साइड। नहीं चटनी देवांतु, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? सॉरी सर। Thank you, thank you. So come to, okay, now come left side. I'm again typing 10 1 0 enter and go up side. यहाँ पे वैल्यू 7.5 की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एंड पॉइंट पे आप क्लिक कर सकते हो। नाउ इट्स डन, प्रेस एस्केप की फ्रॉम योर कीबोर्ड। सो मैंने अभी 10 7.5 हाइट का एक रेक्टेंगल बनाया। अगेन मैं बनाता हूँ, लाइन कमांड लेता हूँ, लेट 10, ऊपर जाओ, सिर्फ माउस को मूव करना है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, 7.5 लेफ्ट साइड 10, come down and press at the end point and press the escape key. That's simple. Got it? लाइन कमांड से कैसे रेक्टेंगल बनाया मैंने? ओके। Yes, sir. नाउ ये जो लाइन का एंड पॉइंट दिख रहा था, मिड पॉइंट दिखा रहा था, सभी दिस इज बिकॉज ऑफ ओ स्नैप। शॉर्टकट की इज F3। आपका अगर ओ स्नैप बंद है, आप अगर लाइन कमांड ले रहे हो, आपको ना ही एंड पॉइंट दिखेंगे, ना ही मिड पॉइंट दिखेंगे, ना कुछ दिखेंगे आपको। दिस इज बिकॉज ऑफ ओ स्नैप। ओ स्नैप इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट स्नैप।
The shortcut key is F3. The shortcut key is F3. OSNAP stands for object snap. The shortcut key is F3. So OSNAP का काम क्या है ना, सभी ज्योमेट्रिकल रेफरेंस पॉइंट्स को वो स्नैपिंग करेगा. To snap all geometrical reference points like end point, mid point, circle का center point, quadrant, then tangent, ये सभी को वो snap करेगा. ओके कभी कभी क्या होता है, आपका ओ स्नैप तो ऑन रहेगा बट आपको मिड पॉइंट नहीं मिलेगा. दिस इज बिकॉज ऑफ योर ड्राफ्टिंग सेटिंग. क्या? दिस इज बिकॉज ऑफ ड्राफ्टिंग सेटिंग. सो व्हाट इज दिस ड्राफ्टिंग सेटिंग? द कमांड फॉर ड्राफ्टिंग सेटिंग इज ds enter. Drafting setting ds. So let me go for ds enter. Done. You can see drafting setting window will come. Here snap and grid is there, polar tracking is there, object snap is there. So आप एक एक टैब में क्लिक करके देख सकते हो. बट मुझे अभी ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ओ स्नैप के बारे में अब देखना यहाँ पे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, ज्योमेट्रिकल सेंटर पॉइंट, नोड, क्वाड्रेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट, सभी पॉइंट्स यहाँ पे अवेलेबल्स हैं. दीज आर कॉल्ड द ज्योमेट्रिकल रेफरेंस पॉइंट्स. आप यहाँ पे क्लियर ऑल कर दो और सिर्फ एंड पॉइंट को रखना एंड ओके करना. इन दिस कंडीशन आपका ओ स्नैप तो ऑन है बट स्टिल आपको सिर्फ एंड पॉइंट्स दिख रहे हैं, मिड पॉइंट या दूसरा कुछ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स नहीं दिख रहे हैं. दैट मीन्स समथिंग इज रॉन्ग इन योर ड्राफ्टिंग सेटिंग. सो यू शुड गो टू द ड्राफ्टिंग सेटिंग, just select whatever you want or you can go for the select all and just click on OK. Sometimes आपको सभी ऑफ करके जो जरूरत है उसको ही ऑन रखना पड़ता है, और नॉर्मली आप सिलेक्ट ऑल करके भी रखोगे तो चलेगा. ओ स्नैप और ओ स्नैप रिलेटेड ड्राफ्टिंग सेटिंग पता चला, या इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क. एनी डाउट्स? मणि एनी डाउट्स? हेलो. हाँ हाँ जी मैडम, एनी डाउट? कुछ डाउट है आपको अभी तक? Okay, 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 fine. Now again come back to your grid modes. Come back to your grid modes. Now I have switched on the grid modes. Now you can see grid modes is nothing without snap mode. So what is snap mode? Okay, grid mode से तो हम ये switch on switch off कर सकते हैं. Now if I will switch on my snap mode and the shortcut key is F9. Now I have switched on the snap mode and I'm going to the line command. I'm going to the line command. Now you can see my cursor is jumping from one box to next box. Can you see this? मैं जब स्नैप मोड मेरा ऑफ है, Yes, sir. सी आई कैन मूव इन बिटवीन द बॉक्स ऑल्सो. आप बॉक्स के बीच से भी जा सकते हो आप. But when you will go to line command and your snap mode is on, you can't go in between the boxes. It will jump from box to box. This is snapping. This is called snapping. Now just click from in. If I am starting from here. This is the major box. I'm starting from here. If you'll go to the next box, it is 0.5 in x-axis. Can you see? If you'll come down, even that is also 0.5. Now, if you want to create a 10 unit line, you can go easily up to 10. 8.5, 9, 10. Got it? No need to put the value. The box itself define you what is the value. Okay. Now you can ask me, sir, this is 0.5 distance each box. Can you change the value? Yes, we can change the value. Even we can change the number of boxes in between every major boxes. Now it is 5. We can go for the 10 also. We can give some value in x-axis, some value in y-axis also. How? Again,
For that we have to go for the drafting setting command. For the drafting setting, again you can go to the ds, enter. Now object snap we learned. Now you can go to the snapment grid. You can see this. In snap, x-axis spacing is 0.5. You can change into 1. It will get changed. If you will change in x-axis, y-axis also, it will change automatically. Why? Here it is equal x and y spacing is checked in. आप अगर उसको अनचेक कर लो, you can give different value in x-axis, different value in y-axis. It is for snapping. Snapping means jumping box to box. Now, as per the grid, this grid, it will jump 2 boxes because grid spacing is still it is 0.5. If you want to change the grid spacing also, you can change it out here. Major line every 5, you can give 10. Got it? So let I'm keeping the default one. I don't want to change it. Let I'm creating here 10. Okay. Now you can see every 10 small boxes, one major boxes will be there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, go to the DS center. Let me keep it as 5, but I want to make it 1. Let it should be equal spacing and just OK. If I'll go to line command, you can see it is now jumping 2 boxes, not even 1 boxes. It is jumping 2 boxes because I've given the value as 1. But the grid is 0.5. If you want to change the grid also, it's okay. Let what I can do, I can go to the DS center. I want to change the grid spacing also to 1. Here also 1 and just click on OK. Now you can see the grids get changed. Line command. Now again it is changing, jumping from one box to another. अभी 2 boxes नहीं jump कर रहा है क्योंकि दोनों का value अभी same है, 1 1 है. अब click करो, आगे जाओ, देखो यहाँ पे 1 है, not 0.5. Got this grid mode and snap mode क्या है, कैसे काम करना है. So basically हम लोग इसमें ज्यादा काम नहीं करेंगे. You will not get much exposed to this, but basic जो है आप समझ के रखो इसको. Grid modes are the grid lines. Snap mode, whenever you will just go to some commands, it will just jump or snap the points. एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स को जंप करेगा और बॉक्सेस के बीच में जो गैप्स हैं और जो वैल्यूज हैं, यू कैन कस्टमाइज इट फ्रॉम ड्राफ्टिंग सेटिंग. डन. ग्रिड मोड जो पूछे थे, कोई एक पूछ रहे थे ना मुझे. Yes, sir. Done. सक्षम. Yes, sir. गॉट इट. Yes, sir. सो बेसिकली हम लोग ज्यादा ग्रिड एंड स्नैप में काम नहीं करेंगे. लेट आई एम स्विचिंग ऑफ दिस. ओके. सो नाउ मेरे पास बहुत सारे कुछ ये हैं, मैं आपको दिखाता हूं. एक मिनट. Can you see these profiles? I section, E section. Yes, sir. ये सभी हम Yes. अभी कर सकते हैं. देखो अभी तो ये एग्जांपल मैंने बताया 150 का, और ये देखो 100, 60, 20, ये 20 है, ये आई सेक्शन है. लेट ये 100 है, ये 140 है, ये 100 है, ये 40 है, और ये 20 है. ये याद रखो. ये आई सेक्शन अभी करके देखते हैं एक. सो लेट मी गो बैक टू AutoCAD. ओके. सो लेट मैं लाइन कमांड लेता हूँ और यहाँ पे अभी 100 का वैल्यू देता हूँ, एंटर. अरे बाप रे, नाउ इट इज आउट ऑफ स्क्रीन. अभी स्क्रीन से आउट हो गया. तो मैं क्या करता हूँ इसके समय पे, अभी एस्केप प्रेस कर लेता हूँ. नाउ जस्ट आई हैव प्रेस द एस्केप. नाउ टू जूम इन,
वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीफाई होगा ये। सो मैं मिडिल बटन को थोड़ा सा ये करूंगा, डन। नाउ अगेन आई शुड गो टू द लाइन कमांड, डन। ऊपर का जो है 20 इज द वैल्यू, अब लेफ्ट में आ रहा हूं, दिस इज 40, ऊपर जा रहा हूं, दिस इज 100, down come here 40, again come 20, left side it's 100, come down it's 20, again come right it's 40, come down 100, left it's 40, enter, and coming down and pressing the, मैं यहाँ पे end point पे click कर लूंगा and just press the escape key. Now this is that I section. This length is 100, this height is 20, this height is 100, the total height is 140, like that only. Even there is another one, what is 100, 60, 20, coming down 40, here it is 80, and coming down here, like that only. अभी आप लाइन कमांड से ये सभी कर सकते हो, जितने ड्राइंग्स मैंने दिखाया है यहाँ पे। सर एक दिक्कत आ रही है सर मेरे को। सर मैं 100 क्लिक कर रहा हूँ, बट सर वो कुछ और ही वैल्यू आ रहा है। क्यों? मतलब मैं सर यूनिट दे रहा, पता नहीं सर, शायद सर वो यूनिट शायद सिलेक्ट नहीं हुआ होगा। नहीं, टिल नाउ मैंने यूनिट के बारे में बात ही नहीं किया। अच्छा, टिल नाउ हमने कभी यूनिट के बारे में बात ही नहीं किया, अभी तक तो यूनिट में छेड़ा भी नहीं हूँ। सर मैं साइन कमांड का यूज कर रहा हूँ, फिर दूसरा लाइन पे जाके क्लिक करके 100 प्रेस कर रहा हूँ, बट वो 6.644.384 ही आ रहा है एंटर करने के बाद भी। नहीं, आई थिंक आपका न्यूमेरिक लॉक ऑफ होगा। आप क्लिक मत करना जब लाइन कमांड ले रहे हो ना, आप क्लिक मत करना। फर्स्ट कमांड, फर्स्ट जैसे कि लाइन कमांड लिया मैं यहाँ से, अभी फर्स्ट पॉइंट मैंने डिफाइन कर लिया, 100 का वैल्यू दिया और एंटर ही दबाऊंगा, अब क्लिक नहीं करूंगा। अच्छा, एंटर दबाया और एस्केप कर लिया। अच्छा, सी, जब मैंने फर्स्ट लाइन, वो फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा था, मेरे पास कोई स्पेसिफाइड पॉइंट नहीं था, देन आई क्लिक्ड इट। बट जब 100 का वैल्यू दे रहा हूं, वो 100 के बाद तो खत्म हो जाएगा, वहां पे सेकंड पॉइंट ऑलरेडी क्रिएट हो गया है। अब क्लिक क्यों करोगे? अब जब क्लिक करोगे, जहां पे क्लिक करोगे उतना तक वैल्यू ले लेगा वो। 100 का वैल्यू कोई मायने नहीं रखता अभी। अब क्लिक जगह कर दे रहे हो ना, सेकंड पॉइंट वो वहीं पे ले लेगा। सो जब भी आप वैल्यू देते हो ना, जस्ट प्रेस द एंटर की, दैट्स इट। आपको कोई क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं अभी ये आई सेक्शन मैंने बनाया, ये आई सेक्शन मैंने बनाया, अगेन मैं लाइन कमांड ले रहा हूँ, सिर्फ एक ही बार क्लिक किया ये फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए। अब मैं यहाँ पे 100 एंटर, मैं क्लिक कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माउस को ऊपर कर रहा हूँ, 20 एंटर, कुछ भी क्लिक नहीं किया अभी भी, सिर्फ माउस को चेंज कर रहा हूँ, माउस को मूव कर रहा हूँ सिर्फ। जस्ट प्रेस द एंटर की आफ्टर गिविंग एवरी वैल्यूज, जस्ट प्रेस द एंटर की, डोंट क्लिक एनीवेयर। ये फर्स्ट पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मैंने सिर्फ क्लिक किया था। अब क्लिक को ही छोड़ दो, सिर्फ माउस को मूव करो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे बस, और वैल्यू देके एंटर बटन दबाते चलो। गॉट इट? यस सर। इवन ये ई सेक्शन भी मैं बना के दिखाता हूं आपको, ये ई सेक्शन। अच्छा, आपको मैं और एक ट्रिक बताता हूं, जैसे कि मेरे पास अभी ड्राइंग है यहाँ पे, ठीक है, और मैं चाहता हूं बार बार ये ड्राइंग को खोलूं, ऑटोकैड में काम करूं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो मेरे पास अभी क्या है ना, स्निपिंग टूल एक रहता है सभी सिस्टम में। स्निपिंग टूल में जाओ, स्निपिंग टूल को ऑन करो, न्यू फाइल में जाओ, स्निपिंग टूल से उसको कट कर लो। सपोज इतना को मैंने कट कर लिया, कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, और यहाँ पे ऑटोकैड में वापस आके कंट्रोल वी कर लो। तो देखो आपका ड्राइंग यहाँ पे आ गया। इजीली आप यहाँ पे देख के काम कर सकते हो। अभी नेक्स्ट वहां पे वो पेज में जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? सो लाइन कमांड ले रहा हूँ, यहाँ पे 135 है, शायद थोड़ा सा विजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है, 135 है, और ये वैल्यू 75 है। ऊपर जाऊंगा 15, नेक्स्ट यहाँ पे आऊंगा 60, अगेन ऊपर जाऊंगा 45, अगेन 60, अगेन 15,
यहाँ पे 60, अगेन 45, 60, 15। सी कितना फास्ट हो सकता है ये। डन। सो लेट व्हाट आई विल डू। तो हमने आज क्या क्या देखा? ऑर्थो देखा, सॉरी ग्रिड मोड देखा, स्नैप मोड देखा, ऑर्थो देखा, ओ स्नैप देखा हमने। ओके, देन जूम इन जूम आउट कैसे करते हैं, स्क्रॉल इन स्क्रॉल आउट करके, पैन कैसे करते हैं। ओके, लाइन कमांड को देखा हमने, लाइन कमांड कैसे क्रिएट करना है। आई थिंक आज आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है जिसके पास सिस्टम है। हाँ जी सर, प्रैक्टिस करना। ठीक है, आई एम जस्ट शेयरिंग। आपके पास है बुक्स? मैं आपको No, sir. वर्कबुक शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ठीक है, पूरा वर्कबुक है मेरे पास। सर ग्रुप में ऐड नहीं हो सर। ओके, ये रवि, ये Sir, सर I ऐड also. कर दे रहा हूँ सर। हाँ आकाश और ये को ऐड कर लो। Sir, यू हाँ, बोथ कैन भाई टाइप नंबर योर भेज देना चैट में। नंबर आप चैट में भेज दो आप। ठीक है। sir, यस, Sir, I am still having problem. व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग? सर मैं 100 दबाने के बाद वैल्यू तो आ रही है, फिर मैं एस्केप दबा देता हूँ तो सर वो गलत हो रहा है आई दबाने के टाइम पे। समझ नहीं पाया मैं। सर मैं 100 दबाने के बाद लाइन तो बन गई, फर्स्ट लाइन। उसके बाद अब आई कैसे बना, उसके बाद आगे प्रोसीड नहीं कर पा रहा। अब प्रेस कर दिया, 100 का लाइन बन गया ना। यस सर। आपने तो एस्केप कमांड लगा लिया, तो मतलब कमांड से तो बाहर आ गए। अब फिर तो से आप वापस फिर से लाइन वापस कमांड, कैसे? फिर से लाइन में क्लिक कर लो। यहाँ पे लाइन में अच्छा। क्लिक कर लो आप। तो सर वो कुछ एंगल वैंगल दिखा रहा है वापस से, वो क्या एक एंगल दिखा रहा है और फिर कुछ डॉटेड लाइंस आ रही है। नहीं नहीं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप, एक मिनट, मैंने लाइन कमांड लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, अभी 100 दे दिया। ओके, एस्केप एंड प्रेस कर दिया, एस्केप की, बाहर आ गया मैं हाँ। अभी। हाँ जी सर। अब फिर से लाइन कमांड में जा रहा हूँ। ओके। अब वो पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट कौन सा है। लेट फर्स्ट पॉइंट में यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा। देन अगेन गो अप साइड, यहाँ पे 20 का वैल्यू दे रहा हूँ, यहाँ पे अगेन लेफ्ट साइड आ रहा हूँ, यहाँ पे 40 का वैल्यू दे रहा हूँ। अब कंटिन्यू करते जाओ, एस्केप दबाने की जरूरत नहीं है। अच्छा इवन मैंने ठीक है। एस्केप क्यों दबाया था, उस वक्त क्या हुआ था, मेरा स्क्रीन से आउट हो गया था 100। ओके सर। That's why I just press the escape key. Otherwise, you no need to go for the escape key also. Just आप press 100 करो, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट में आपका पूरा ड्राइंग खत्म हो जाएगा। अच्छा सर ठीक है। आपको सिखाने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने पहला जो 10 यूनिट का लाइन बनाया था उसके लिए एस्केप की दबाया था। अदरवाइज आपको कोई प्रोफाइल बनाना है, आपको एस्केप की बनाने मतलब दबाने की जरूरत नहीं है। आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे करके वैल्यू चेंज करते करते पूरा प्रोफाइल बना सकते हो आप। ठीक है सर, समझ गया। क्लियर है? यस सर। इवन मैं कल उसका इजी वे और बताऊंगा। जैसे ये आगे आगे जाएंगे ना, ड्राइंग में भी सेम रहेगा, बट हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जो जल्दी जल्दी में हो सकता है। सो दिस इज द बेसिक कि आपने सीख गए कि लाइन कमांड से हम प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे। सी दुनिया में कोई भी ड्राइंग्स देखो, लाइन एंड सर्कल से कंप्लीट है। हाँ जी सर। लाइन एंड सर्कल से कंप्लीट है, तो उसको हम कर सकते हैं इजीली। और इवन मैं तो बोलता हूँ ऑटोकैड अगर कोई सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में करता है ना, और उसको इतना अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आप रिज्यूम में जब पास आउट हो जाओगे, रिज्यूम में लिख लो 1-2 साल का ऑटोकैड में एक्सपीरियंस है करके। सर एक्सपीरियंस वो तो सर पापा बोलते ही रहते हैं कि ऑटोकैड कर ले, सही रहेगा। और सिर्फ ऑटोकैड की बात नहीं है, कोई भी 3D मॉडलिंग का सॉफ्टवेयर कर लो, ऑटोकैड कर लो। आप जितने ज्यादा सर, प्रैक्टिस करोगे, सी ऑटोकैड सबसे मतलब वाइड स्प्रेड है ना, इसलिए ऑटोकैड कर रहा हूं ऑटोकैड तो मैं। बेसिक है। विदाउट ऑटोकैड आप जा ही नहीं सकते कोई इंडस्ट्रीज में। इसलिए सर वही के पहले कर इवन रहा हूँ नॉट वरना। ओनली ऑटोकैड, सिर्फ ऑटोकैड सीखने से, कुछ सर्टिफिकेट लेने से कोई फायदा नहीं है। आप हाँ कितना जी सर। फास्ट कर सकते हो, वो टेक्निक्स कैसे यूज करोगे, एप्लीकेशन कैसे ये करोगे, दैट डिपेंड्स। अब ओके सर। मेरा जो है ना बड़ा मतलब ये जो प्रोसेस है, आपको मैं अगर सिलेबस के थ्रू से पूरा एक बाय बिट चला जाऊंगा ना, आपको समझ में नहीं आएगा। कुछ समझ में तो आ जाएगा, फिर बाद में भूल जाओगे आप। दैट्स वाई मैं ऐसा कर रहा हूँ कि आपको भी समझ में आए, मुझे इजी हो कि आपको मतलब सिखाने के लिए। So, ठीक है अभी सर। फिलहाल जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिसके मन में, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, बिकॉज दिस इज द सेकेंड डे, हमारे पास काफी दिन है अभी।
मैं अभी जितना स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, 5 दिन के बाद ये डबल हो जाएगा स्पीड, क्योंकि तब तक आप कैच कर लोगे। तो अभी जितने भी डाउट्स आ रहे हैं मन में, जो भी आ रहे हैं ना, उसको लिख के रखो, सभी नोट डाउन करके। अभी जो मैं जितना जितना ही बोल रहा हूँ उतना ही करो। जब एंड ऑफ द डे जैसे कि 4-5 दिन चला जाएगा, देन यू, आई होप दैट आपके क्वेश्चन का हर सवाल का जवाब आपके पास खुद होगा। अगर नहीं होगा देन यू कैन आस्क मी। थोड़ा शायद टाइम लगेगा सर इसको। कोई टाइम नहीं लगेगा, आप प्रैक्टिस करो, जितना आज बताया आप प्रैक्टिस करो, देखना 5 दिन का टाइम दो। आप अगर बोलोगे कि सर टाइम लगेगा, देन मुझे बोल देना। ठीक है। ठीक है। यस सर। आई थिंक मोर देन 3000 to 4000 से ज्यादा होगा शायद स्टूडेंट को आज तक मैं पढ़ा चुका हूँ। सो डोंट वरी, ट्रस्ट मी। अब जितना मैं बोल रहा हूँ, सवाल आ रहे हैं, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा रुक जाओ 1-2 दिन, उसके बाद सवाल करना स्टार्ट करोगे। अभी तक के लिए 3-4 दिन बस जैसे बोलूं मैं उतना प्रैक्टिस कर लेना। सभी के पास सिस्टम है या किसी के पास सिस्टम नहीं है? अगर सिस्टम है बहुत है अच्छा सर। है ना सबके पास? यस सर है। Yes, sir. मणि, यू हैव सिस्टम? Yes, sir. आपका वॉइस थोड़ा थोड़ा ब्रेक आ रहा है। आप एक ही लेडी हो, मतलब गर्ल हो, तो आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट ज्यादा करो। ठीक है, सिस्टम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ये सेशंस में रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ, तो मैं ये सभी को मैं अपलोड कर दूंगा। जब एंड ऑफ द सेशन, जब क्लास खत्म हो जाएगा, मैं उसको पैनल पे अपलोड कर लूंगा उसको, तो आपको वीडियोस सर। मिल जाएंगे आगे, मतलब रेफरेंस के लिए। जी सर। ठीक है, बट अभी तो जी नहीं सर। करूंगा। हाँ जी। एनीवे, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल फिर मिलेंगे। कल बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, यही ड्राइंग को फिर से करेंगे दूसरे टेक्निक से। और मैं ओके आपको सर। सर आप शेयर कर देना। वर्कबुक शेयर कर लेता हूँ। यस सर। ओके। ठीक है। ओके। और वर्कबुक में आप यही Yes, वाला sir. पेज ढूंढना, जो पेज मैंने अभी दिखाया ना, वही पेज को ढूंढना। आप वही पेज को प्रैक्टिस करो। आप ज्यादा कर सकते हो, अच्छी बात है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ये पेज को कंप्लीट करके आना कल। जी सर। ठीक है, चलो फाइन। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। Good night, sir. Good night, sir.